Hello everyone, welcome to Commerce Pathshala. Today we are going to discuss about the social responsibility of business. What is social responsibility? Social responsibility which towards the society. Society means society people. Every individual should have social responsibility, must have social responsibility towards the society, our economic system, our social system, our cultural system. Social responsibility of business towards the shareholder, towards the competitor, towards the customer should be create, must be create. Now, social responsibility meaning social responsibility content that the management is responsible to the organization itself and to all the interested group which it interact. मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की खुद के लिए भी और साथ के साथ जिस सोसाइटी के अंदर है कि वो बिजनेस हमारा रन किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, चाहे वो वर्कर हो, कस्टमर हो, क्रेडिटर हो, सप्लायर हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, उन सब की तरफ जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सामाजिक तौर पर, इट विल बी कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Social responsibility means social commitment of business towards the different group. Different groups include the worker or employees or management, competitor, customer, government, etc. It is a commitment of every individual, not only the business, but social responsibility should be for every person towards the community, towards the society. If we talk about the corporate social responsibility also means the responsibility of business towards the society. जो हमारी सोसाइटी की तरफ क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स आर इंक्लूडेड in the society sector. For example, shareholder, worker, customer, creditor, supplier, government, society, or social environment or cultural environment also include in the society. All these are called stakeholder, shareholder, worker, customer, creditor, supplier, government. All these are called the stakeholder because interaction to all these type of the society groups time to time created by the business. Now, all the participant or the interacted people who are directly or indirectly linked with the business or with the company. Some are the internal and some are the external stakeholder. Internal stakeholder include the employees, managers, owners, जो हमारे बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में जो हमारे बिजनेस के बाहरी एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, शेयर होल्डर एंड कस्टमर. Right side portion denotes all the external stakeholder relate with the company. First of all, responsibility towards the shareholder, कि जो शेयर होल्डर की तरफ हमारे बिजनेस की या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो क्या बनती है. शेयर होल्डर कौन होते हैं? दोज इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट द मनी इन आवर कंपनी शेयर और इन एनी कंपनीज बिजनेस शेयर. जो किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस के शेयर में सिक्योरिटीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं. शेयर होल्डर हमेशा कुछ ना कुछ बेनिफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो मनी है वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तरफ क्या क्या बनेगी किसी भी कंपनी की, रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको प्रॉपर रिटर्न देना. मींस एवरी ईयर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से जो पोर्शन एज ए डिविडेंड उनको क्या किया जाता है, पे किया जाता है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाता है. रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होगी हमारी सिक्योरिटीज़ की रेट्स के बारे में, हमारी कंपनीज की सिचुएशंस के बारे में टाइमली वो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना. एसेट्स को इंक्रीज करना, जो भी सजेशन होते हैं उन सजेशंस को एक्वायर करने के लिए उनको रिक्वेस्ट भेजना, और पब्लिक इमेज जो होती है कंपनी की उसको इम्प्रूव करना.
ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी बनती है, बिजनेस की या कंपनी की बनती है टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। Now, responsibility towards the employees who are working for compensation, for remuneration, for any business or any company. Employees are those person जो किसी भी बिजनेस के लिए रेमुनरेशन, सैलरी या वेतन के बदले में क्या करते हैं, काम करते हैं कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए। अब वो काम करते हैं सैलरी वेजेस के लिए, कंपनसेशन या रेमुनरेशन के लिए, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उनको टाइमली जो तनख्वाह है, वेजेस है, वो टाइमली उनको प्रोवाइड की जाए। वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है वो उनको सेफ और एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। वर्कर का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्कर हमारे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। जब उनको एक हम बिजनेस का हिस्सा, अगर बिजनेस का हिस्सा मानने की फीलिंग अगर हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे, और वो कब होगी, जब डिसीजन मेकिंग जो भी हमारी क्या होती है एक्टिविटीज होती है उनके अंदर जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन है, वो हमारा लिया जाएगा। प्रमोशन के टाइम टू टाइम जो प्रॉपर चांसेस होते हैं हमारे, वो उनको प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम उनको अप्रिशिएशन करना, अप्रिशिएट करना, एनकरेज करना, उनकी स्किल्स के अंदर इम्प्रूव करना, साथ ही साथ जो उनकी ग्रीवेंसेज हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कोई डिफिकल्टी आती है वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड या किसी वर्क की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो उन ग्रीवेंसेस को टाइम टू टाइम हैंडल करना या फिर उनको सॉल्व करना, ये भी हमारे बिजनेस की क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कस्टमर, कि कस्टमर की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। कस्टमर जो हमारी बिजनेस के या कंपनी के गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो कस्टमर को हम एक अच्छी क्वालिटी का गुड्स जो है या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें, रीजनेबल रेट्स के ऊपर प्रोवाइड करें, जो उनकी नीड एंड वांट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो गुड्स और सर्विसेज है वो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही साथ आफ्टर सेल सर्विसेज को भी हमें क्या करना है, उनको रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, क्योंकि आज के टाइम में वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल है जो कस्टमर को गुड सेल करने के बाद की आफ्टर सेल सर्विसेज भी क्या करता है, उनको प्रोवाइड करता है। और प्रोडक्ट की इमेज जो होती है वो कस्टमर के माइंड में अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को टाइम टू टाइम अट्रैक्ट करता रहे, और एडवर्टीजमेंट जब की जाएगी कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए या फिर उनको अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस या प्रोडक्ट की तरफ, तो उस एडवर्टीजमेंट के अंदर जो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन है, हमारी सही इंफॉर्मेशन है गुड्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, गुड्स की क्वालिटी के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी सही होनी चाहिए, यानी कि राइट इंफॉर्मेशन हमने उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द क्रेडिटर और सप्लायर, सप्लायर आर दोज पर्सन बिजनेस परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, कि जिनसे बिजनेस जो है या कंपनी जो है गुड्स क्या करती है, क्रेडिट पे यानी कि उधार में गुड्स को क्या करेगी, परचेज करेगी। तो क्रेडिटर्स या सप्लायर्स की तरफ क्या इन्फॉर्मेशन बनती है, ये इन्फॉर्मेशन बनती है कि उनसे जो भी गुड्स या सर्विसेज हमने परचेज की हैं, जो भी पैसा अगर हमने क्या किया है, क्रेडिटर से बोरो किया है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो टाइमली हम पे करें। मटेरियल हमने परचेज किया है सप्लायर से, तो उनकी जो पेमेंट है वो हम टाइमली उनको पे करते रहें, जिसके कारण जो दोनों के रिलेशन हैं सप्लायर के और कंपनी के, इंस्टीट्यूशन के, बिजनेस के, वो हमारे क्या होते हैं, स्मूथली प्रॉपर तरीके से अच्छे रिलेशन जो होते हैं वो बने रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को जब हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट की तरफ भी हमारे क्या बनते हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं जिनको हमें पूरा करना है, किसी बिजनेस को पूरा करना होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ बिग वेरी बिग सोर्स ऑफ इनकम। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो क्या होता है, टैक्स होता है। और अगर हम फेयरली उनको क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ टैक्स जो होता है वो टाइमली ईयरली भरते हैं, तो इसका मतलब पूरी ऑनेस्टली हम गवर्नमेंट की तरफ भी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट कर रहे हैं। जो करप्शन होती है उसको अवॉइड करना, एक फेयर जो ट्रेड होता है हमारा, जिसके अंदर किसी प्रकार की मिस रिप्रेजेंटेशन या मिसकंडक्टिंग नहीं होती, तो इन सभी चीज़ों को एनकरेज करने के लिए, फेयर ट्रेड को, फेयर जो हमारे बिजनेस होते हैं उनको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारी, वो क्या करनी होती है, टाइमली हमें पूरा करनी होती है।
साथ के साथ जो मोनोपोली अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐसे हैं जिसके अंदर मोनोपोली हमारी क्रिएट नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर टाइमली हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो आते रहते हैं। अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आता है, ये देखता है कि अगर ये बिजनेस अच्छा चला सकता है तो सेम टाइप का बिजनेस हम भी कर सकते हैं, तो उस केस में वहां पर मोनोपोली क्रिएट होना क्या होता है, आपका डिफिकल्ट होता है। तो मोनोपोली को ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप की मेनली गुड्स और सर्विसेज के अंदर अवॉइड करना होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी और एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम सोशल एनवायरनमेंट को एक तो पोल्यूटेड होने से बचाएं, एनवायरनमेंट को टाइमली हम क्या करें, उसको डेवलप करने के लिए जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, उसको किसी तरीके से हार्म ना किया जाए। प्रॉपर तरीके से कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज को और वाइल्ड लाइफ को हमें करना है। नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनका यूज़ जो होता है वो प्रॉपर हमें जो यूटिलाइजेशन है वो हमें करना है, और सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट हमें करना है। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, क्योंकि सोसाइटी में रहकर हमें क्या करना होता है, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, सोसाइटी में रह के अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बिजनेस के अंदर हमें काम करने वाले कर्मचारियों की या व्यक्तियों की जरूरत होगी, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जरूरी होता है। वहाँ के एजुकेशन प्रोवाइड करना, मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होती हैं, इन सभी फील्ड के अंदर हमें जो हेल्प है, असिस्टेंस है, वो क्या करनी होती है, प्रोवाइड करनी होती है। तो ये थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आपको एक जो इमेज है वो दिखाई गई है इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर आपको एक एग्जांपल दिया गया है आइडिया का। आइडिया हमारी एक सिम है ना, मोबाइल फोन के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है कि यूज मोबाइल सेव पेपर। व्हाट एन आइडिया, मतलब कि आप आइडिया की सिम को यूज करके बहुत सारे उसके क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। पहले के टाइम में आइडिया की सिम जो होती थी वो बहुत अच्छी चलती थी। आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा जो आइडिया की सिम है वो क्या की गई है, हमारी बनाई गई है, वो प्रोवाइड की गई है। तो इमेज जो है हमारी वो यहाँ पर क्या बताती है कि एक हमारी जो सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें डाटा को भी सेव करना है, प्रॉपर सेफली हमें क्या करना है, मोबाइल टेक्निक को यूज करना है, प्रॉपर नेटवर्किंग एरिया हमारा अच्छा हो। तो ये सारी की सारी जो इमेज है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर क्या करती है, दिखाती है। जैसे कि इसके अंदर एक पेड़ जो है वो दिखाया गया है। अब एक पेड़ बहुत सारे काम करता है, फल भी देता है, लकड़ी भी देता है हमें, और साथ के साथ छाया भी प्रोवाइड करता है। हमारा जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट होता है उसको भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखता है। ऑक्सीजन का हमारा जो सिस्टम होता है, तो इस तरीके से आइडिया की सिम के अंदर भी बहुत सारे आपके बेनिफिट्स थे जो हमारे स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या थे। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, कि आइडिया जो है कोई भी आपके पास है तो वो आपकी लाइफ को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का क्या ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, वो बिजनेस से रिलेट करेगा, और बिजनेस से रिलेट करेगा तो इसका मतलब वो हमारी सोसाइटी की तरफ या एनवायरनमेंट की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। So this is all for today, and we discuss about the social responsibility. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी शेयर होल्डर की तरफ बनती है, जो हमारी कॉम्पिटिटर की तरफ बनती है, सोशल और एनवायरनमेंट की तरफ बनती है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।